দেখছেন নিউজ 18 প্রাইম, আমি রুমেলা রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। শুরুতে যে খবরে নজর, পদ্মের প্রচার তাই পরিবর্তন যাত্রা। ভোটের বাংলায় বিজেপির নটি যাত্রা। আজ থেকেই সেই যাত্রার উদ্বোধনে হেভিওয়েটরা। 4 জেলায় এই মুহূর্তে ফোকাস। 4 জেলায় একসঙ্গে পরিবর্তন যাত্রার সূচনা। কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে সূচনায় নীতিন নবীন, কৃষ্ণনগরে যাত্রার সূচনায় জেপি নাড্ডা, অন্যদিকে কুলটিতে পদ্মের কর্মসূচির সূচনায় অন্নপূর্ণা দেবী, গড়বেতায় কর্মসূচির সূচনায় ধর্মেন্দ্র প্রধান। 2রা মার্চ রায়দিঘিতে কর্মসূচির উদ্বোধনে অমিত শাহ, সুকান্ত মজুমদার। 2রা মার্চ ইসলামপুরে নীতিন নবীন, দিলীপ ঘোষ। আগামীকাল উদ্বোধনে আমতায় রাজনাথ, শ্রমিক। হাসনে দেবেন্দ্র ফডনবিস, মিঠুন চক্রবর্তী, সুকান্ত মজুমদার। সন্দেশখালীতে শিবরাজ, শুভেন্দু, শান্তনু, লকেট। 5 থেকে 10ই মার্চ বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা। বিজেপির 9 যাত্রার গন্তব্য ব্রিগেড। পদ্মযাত্রার শেষে মার্চেই ব্রিগেডে নরেন্দ্র মোদীর সভা। পদ্মের প্রচার। ভোটের বাংলায় বিজেপির 9 যাত্রা। 4 জেলায় নজর। কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে সূচনায় নীতিন নবীন। পদ্মের প্রচার, পরিবর্তন যাত্রা। পাখির চোখ বিধানসভা নির্বাচন তার বলার অপেক্ষা রাখে না। এই বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় তাদের জমি আরো শক্ত করতে এবার একেবারে হেভিওয়েটরা তারা প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ভোট ঘোষণার আগেই পদ্মের প্রচার, পরিবর্তন যাত্রা। এই পরিবর্তন যাত্রা থেকে আমরা দেখেছি বারবার তারা বার্তা দিয়েছেন বাংলার মাটিতে পরিবর্তন আনার। এবারও ভোটের বাংলায় বিজেপির 9টি যাত্রা রয়েছে। আজ থেকে সেই যাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা বলা যায়। আজ থেকে উদ্বোধনে হেভিওয়েটরা এই যাত্রার, এবং প্রত্যেক কটা যে যাত্রা, এই যাত্রার গন্তব্য হচ্ছে ব্রিগেড। সেই ব্রিগেডে শীর্ষ নেতৃত্বরা থাকবেন, উপস্থিত থাকবেন স্বয়ং নরেন্দ্র মোদী। 4 জেলায় একসঙ্গে পরিবর্তন যাত্রার সূচনা। কোচবিহারের রাসমেলা মাঠের ছবি আপনাদেরকে দেখাবো কিছুক্ষণের মধ্যেই। কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে সূচনায় নীতিন নবীন। কৃষ্ণনগরেও রয়েছে এই যাত্রা, সেখানে যাত্রার সূচনায় জেপি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। কুলটিতে পদ্মের সূচনায়, এই কর্মসূচির সূচনায় অন্নপূর্ণা দেবী। পাশাপাশি গড়বেতাতেও এই কর্মসূচি রয়েছে, তার সূচনায় ধর্মেন্দ্র প্রধান। 2রা মার্চ রায়দিঘিতে কর্মসূচির উদ্বোধনে অমিত শাহ, সুকান্ত মজুমদার। গড়বেতায় পরিবর্তন যাত্রা। গড়বেতায় কর্মসূচির সূচনায় ধর্মেন্দ্র প্রধান, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। পরিবর্তন যাত্রার আগে গড়বেতার সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পুজো দেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। সেই ছবি আপনারা দেখছেন। বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা, দিকে দিকেই পরিবর্তন যাত্রায় আমরা দেখছি ধর্মেন্দ্র প্রধান তিনি পুজো দেন। গড়বেতায় কর্মসূচির সূচনার আগে তিনি পুজো দেন সর্বমঙ্গলা মন্দিরে। কথা বলবো, শোভন প্রতিনিধি রয়েছেন সঙ্গে। শোভন, দেখো, দুপুর 2টো নাগাদ কিন্তু যে কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রী রয়েছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান, তিনি কিন্তু উপস্থিত হন গড়বেতায়, এবং গড়বেতার যে সর্বমঙ্গলা মন্দির রয়েছেন তিনি সেখানেই প্রথমে যান এবং সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পুজো দেন। এবং সেখানে পুজো দেওয়ার পর সেখানে কর্মীদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন এবং সাংবাদিকদের মুখোমুখিও হন তিনি সেই মন্দিরে। এবং সেখান থেকে তিনি তার যে পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি, অর্থাৎ গড়বেতার যে স্কুল ময়দান রয়েছে সেই স্কুল ময়দানে পরিবর্তন সংকল্প সভা, সেই সভায় মঞ্চে উপস্থিত হন তিনি। একই সঙ্গে তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই মুহূর্তে কিন্তু তিনি সভা মঞ্চে রয়েছেন এবং এই মুহূর্তে কিন্তু যে সভা মঞ্চে যারা উপস্থিত রয়েছেন বিজেপি কর্মকর্তা বা বিজেপি কর্মী সমর্থকরা, তাদের উদ্দেশ্যে একদিকে যেমন বক্তব্য রাখছেন শুভেন্দু অধিকারী, তার পাশাপাশি কিন্তু আগামী যে বিধানসভা নির্বাচন, সেই নির্বাচনের যাতে বিজেপিকে এই রাজ্যে শক্তিশালী করা যায় এবং রাজ্যে পরিবর্তন আনা যায়, সেই আবেদনই রাখা হচ্ছে কিন্তু এই সভা মঞ্চ থেকে। বেশ, গড়বেতার ছবি আপনারা দেখছেন। গড়বেতায় কর্মসূচির সূচনা, পরিবর্তন যাত্রার সূচনায় ধর্মেন্দ্র প্রধান, এবং সেখানেই রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। মিছিলে পা মেলাচ্ছেন তিনি। সরাসরি কোচবিহারের রাসমেলার মাঠ নজর রাখবো, সেখানে নীতিন নবীন বক্তব্য রাখছেন। पवित्र भूमि को मेरा प्रणाम है। स्वामी विवेकानंद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान विभूतियों की इस भूमि को भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ आज इस पूरे बंगाल में एक ही शब्द अब आज से गूंजने वाला है, और बंगाल की जनता की आवाज बनकर जो शब्द आ रहा है वो शब्द है परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। अब इस आवाज को पूरे बंगाल के लोगों को गुंजायमान करना है। आज से ये यात्रा जो 5000 से अधिक किलोमीटर की ये यात्रा पूरे बंगाल के घर घर में जाएगी। जिन घर घर के दरवाजों तक अब तक केवल घोषणाएं पहुंची थी,
अब तक केवल बड़े बड़े वादे पहुंचे थे, जहां केवल अहंकार के शब्द पहुंचे थे। आज भाजपा के ये परिवर्तन यात्रा उनके बीच में अपने विश्वास के साथ, अपने उस परिवर्तन के आवाज के साथ पहुंचने वाली है। ये परिवर्तन केवल हमारी व्यवस्था बदलने का विषय नहीं है, ये परिवर्तन उस व्यवस्था के साथ उस सोच को बदलने का समय आ गया है, जिसमें सकारात्मक सोच के साथ नए बंगाल के निर्माण का हम आगे बीज रखेंगे। हमारे बंगाल के भाइयों बहनों, हम सबको तैयार हो जाना है, जहां अपने इस बंगाल को घुसपैठियों के सरकार से पूरी तरह से मुक्त करना है और इस बंगाल के लोगों को एक नया बंगाल, विकसित बंगाल का सपना देना, साकार करना है। हमें भी कष्ट होता है जब यहाँ के लोग, यहाँ के भाई बहनों का हक छीनने वाली सरकार यहाँ पर बैठकर लोगों का हक छीनती है। बंगाल अब उठकर परिवर्तन की आवाज बुलंद करेगा, एक ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि दिखेगा जिसमें यहाँ की बेटियों को सुरक्षित होगा, यहाँ के नागरिकों को भयमुक्त शासन मिलेगा, यहाँ के युवाओं के भविष्य को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, सिंडिकेट और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई सरकार को से मुक्ति मिलेगी और जमीन का हक, बंगाल के जमीन का हक बंगाल के लोगों को मिलेगा। ममता दीदी ने सत्ता में आने के पहले मां, माटी और मानुष का नारा बुलंद किया था, पर दुर्भाग्य है कि दीदी ने माए बहनों को, बेटियों को असुरक्षित रखने में कोई कसर छोड़ी। और हम कह सकते हैं बच्चियों को शिक्षण संस्थानों में भी सुरक्षा नहीं मिली। ममता बनर्जी दीदी कहती हैं कि बहन बेटियों को शाम में नहीं निकलना चाहिए। मैं पूछता हूं दीदी, आखिर बंगाल जिसका संस्कृति, जिसका सभ्यता इतना विकसित रहा है, जो पूरे देश को नेतृत्व देता है, वहां की बहनों को आप कहते हैं कि वो घर के अंदर महफूज रहे। मैं आज बंगाल की बेटियों की जो चीख और पुकार हुई, आप उसको नहीं सुन पाई, उनके अपमानों का बदला आपने नहीं लिया है, तो बंगाल की माता बहनों के अपमान का बदला बंगाल का एक एक भाई लेगा, एक एक हमारा यहाँ का साथी लेने वाला है। आज हम बंगाल के इस पवित्र माटी से उन घुसपैठियों को भी स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि आपने बंगाल में जिन घुसपैठियों का साथ दिया था, अब उन घुसपैठियों को बाहर करने का समय आ गया है। मां काली की पूजा करने के लिए हमें कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन नमाज अदा करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट संदेश है कि किस प्रकार से यहाँ की सरकारें काम कर रही हैं। मित्रों, मेरे युवा साथियों, आने वाले समय में बंगाल को उस मानसिकता से मुक्ति दिलानी है जो मानसिकता तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित होती है। बंगाल की जमीन को जब हम फेंसिंग के लिए मांगते हैं, जब हम कहते हैं कि हम बंगाल की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो ममता दीदी के पास जमीन नहीं होता है देने के लिए और उस फाइल को अटकाती हैं, लटकाती हैं। लेकिन यहीं पर अगर कहे कि अगर बंगाल की जमीन पर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जमीन देने की बात आएगी, तो ममता दीदी रेड कारपेट बिछाकर लोगों को जमीन देती है। इस बात को हमको समझना होगा। दीदी, आपने फर्जी कागजों के आधार पर देश के में घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम किया है और आप उन घुसपैठियों की लड़ाई लड़ने के लिए आधी रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं, पर जब यहाँ के मां बहनों का अपमान होता है तो आप पूरी तरह से नींद में सोई रहती हैं। उस समय आपको चिंता नहीं होती कि मां बहनों के लिए भी आपको कोर्ट के दरवाजे पर जाना चाहिए था। आज 50 लाख से अधिक घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से कटा है और ये यहाँ के प्रशासन ने माना है कि आज 50 लाख से अधिक लोग यहाँ पर घुसपैठी बनकर यहाँ के लोगों का हक छीनते थे। मैं पूछता हूँ, ये 50 लाख लोग किसके नौकरी खा रहे थे? ये 50 लाख लोग किसका हक मार रहे थे? ये 50 लाख लोग इतने सालों से किसका राशन खा रहे थे? ये 50 साल लोग यहाँ की सुरक्षा को खतरा किसका सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहे थे? ममता दीदी, क्या आपने बंगाल के लोगों को, अपनी सरकार को उन घुसपैठियों पर भरोसा किया? बंगाल की जनता पे अगर भरोसा किया होता तो आपको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं आज बंगाल के लोगों से कहूंगा
जो हमारी दीदी का लगातार विषय रहा है कि हम घुसपैठियों को संरक्षण देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको स्पष्ट कहा है कि ये 50 लाख लोग तो घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से नाम डिलीशन तो हो ही रहा है। आने वाले समय में ऐसे लाखों घुसपैठिया और भी हैं जिनको भी चिन्हित कर कर यहां से निश्चित रूप से बंगाल की जनता के लोगों का हक छीनने नहीं देंगे। आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि इन घुसपैठियों को टीएमसी की सरकार बाहर कर सकती है? क्या आपको लगता है कि यहाँ की कांग्रेस में जो हमारे नेता बैठे हैं वो इनको बाहर कर सकते हैं? क्या कम्युनिस्ट के लोग इन घुसपैठियों को बाहर कर सकते हैं? मित्रों, इनको कोई बाहर कर सकता है तो आपकी भाजपा की सरकार ही बाहर कर सकती है। आपको आपका हक दिलाने का काम कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ही आपको हक दिला सकती है। तो आइए मित्रों, इन घुसपैठियों को हमको बाहर ही नहीं करना है, एक ऐसी निर्णायक सरकार बनाना है जिस सरकार से यहाँ के लोगों को विकास के साथ जोड़ा जाए। और कह सकते हैं जिस योजनाओं को यहाँ पर लागू करने में ममता दीदी लगातार सौतेला व्यवहार करती हैं, हम बंगाल की जनता को उसका हक दिला के रहेंगे, इसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी हमें देनी पड़े। हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर किस प्रकार से अत्याचार और भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है। उनके भतीजे टीएमसी के गुंडे और घुसपैठियों के लिए काम करने वाली सरकार यहाँ बैठी है। ऐसी कोई योजना नहीं जिसमें ममता दीदी के टीएमसी के गुंडों ने वसूली न की हो, चाहे वो सरकार की योजना हो, चाहे हमारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आम जनता तक पहुंचाने का जो प्रयास हो। आज बंगाल के एक एक लोगों को उसका हक छीनने का काम कोई कर रहा है तो टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी योजना चलती है माता बहनों को लिए, जीविका की योजना बिहार में चलती है। 10,000 रुपया हम लोगों ने करीब 1 करोड़ महिलाओं को दिया, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि 1 रुपया भी किसी बिचौलिए ने लिया होगा। लेकिन दीदी, आप माता बहनों तक पैसा पहुंचाती हैं और पीछे से आपके टीएमसी के गुंडे उनसे हफ्ता वसूली करने के लिए पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ के भाई बहन लोग अपना मकान बनाते हैं तो टीएमसी गुंडों को हफ्ता देना पड़ता है। यहाँ के लोग अगर कोई सड़क और निर्माण करता है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है तो उसको भी टीएमसी के गुंडों को हफ्ता देना पड़ता है। ममता दीदी, आपने किस प्रकार की सरकार बनाई है? आप किस कहती हैं कि हमारी सरकार में करप्शन नहीं है, तो मैं पूछता हूं शिक्षक भर्ती घोटाला क्या है? एसएससी घोटाला क्या है? नगर पालिका नगर निगम में भर्ती घोटाला क्या है? राशन घोटाला क्या है? और दीदी, आपके आधा दर्जन मंत्री अगर जेल गए हैं तो कौन से तीर्थ यात्रा में गए हैं? उन्होंने कौन सा कारनामा किया था कि आज आपकी सरकार के मंत्री जेल जाने के लिए मजबूर होते हैं? दीदी, आपने भ्रष्टाचार, भतीजे की दादागिरी और पुलिस का जो दुरुपयोग का नया इंडस्ट्री खोला है, उस इंडस्ट्री को बंगाल की जनता, बंगाल के लोग ही समाप्त करेंगे और वो समय आ गया है। मित्रों, दीदी के राज में कार्रवाई तो होती है, पर क्या चीज के लिए? टीएमसी के गुंडों को बचाने के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। दीदी, क्या यही सोनार बंगाल बनाने का सपना आपने दिखाया था, जिसमें केवल भ्रष्टाचार होगा, अराजकता होगी, यहाँ के लोगों का शोषण होगा? अब बंगाल का युवा बहुत परेशान हो चुका है। बंगाल के युवाओं को जो आईटी हब देखना था, वो आज कहीं न कहीं अड्डे की दादागिरी देख रहा है। जो घोटालों का केंद्र जहां पर विकास होना था, वो घोटालों का हब बनकर बैठा है। आज हम अपने इन चीजों का हिसाब लेने के लिए ये परिवर्तन यात्रा निकल रही है। मित्रों, यही वो भूमि है जहां पर वंदे मातरम के गान से पूरा देश आजाद हुआ, और यही वंदे मातरम आज 150वीं वर्षगांठ जब हम मनाते हैं तो टीएमसी के सांसद संसद में उसको रोकते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिस वंदे मातरम ने पूरे देश को आजाद कराया, उसी वंदे मातरम का अपमान टीएमसी के सांसद यहीं के बंगाल के सांसद अपमानित करते हैं। तो ममता दीदी, उस वंदे मातरम ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी दिलाई थी, अब वंदे मातरम की वही गूंज पूरे बंगाल को आजाद करेगी, पूरी तरह से आपकी अराजकता को पूरी तरह से मुक्त सरकार बनाएगी। हम आज इस ममता दीदी आपको चुनौती देते हैं। बंगाल की जनता ने जब जब आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया है,
उसने परिवर्तन लाया है और उस परिवर्तन की शंखनाद आज होने जा रही है। যে ছবি আপনারা দেখছেন নেতাজি নগরে দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে তুলকালাম, দেওয়াল লেখা ঘিরে নেতাজি নগরে তৃণমূল বিজেপি ঝামেলা, উত্তপ্ত ছবি। যেই ছবি আপনারা দেখছেন, নেতাজি নগর থানার সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখানো হয়, তারপর এই ঘটনাস্থলে মোতায়েন হয় বিশাল পুলিশ। যে ছবি আপনারা দেখছেন, নেতাজি নগর থানার সামনে তুলকালাম। কথা বলবো, রৌনক প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। রৌনক, এখন কি অবস্থা? এখনো কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি পুলিশ। ইতিমধ্যে যে বিষয়টা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম, দীর্ঘক্ষণ ধরে থানার সামনে দুই পক্ষ জমায়েত করছে, চলছে দুই পক্ষের মধ্যে। তারপরই পুলিশ এই মফটিকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য, তাদেরকে অনুরোধ করে সরার জন্য, তাদেরকে সরিয়ে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা পুলিশ যখন শুরু করে, হঠাৎই দুপক্ষের তরফ থেকে হাতে জড়িয়ে পড়ে তারা। দুপক্ষের তরফ থেকে আদলা ইট ছোড়া হয়, তাতে করে কিন্তু পুলিশের দিকেও লক্ষ্য করে আদলা ইট এবং হেলমেট ছোড়া হয়। এখনো পর্যন্ত কিন্তু দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি, কার্যত সেই ছবি স্পষ্ট। এবং পুলিশের তরফ থেকে এই যে জমায়েত, সেই জমায়েত ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যেখানে তারা জমায়েত করেছিল একদমই থানার সামনে, দীর্ঘক্ষণ ধরে দুই পক্ষের তরফ থেকে স্লোগান, পাল্টা স্লোগান চলছিল। পুলিশের তরফ থেকে সেই জমায়েত সরানোর প্রক্রিয়া শুরু করা হলেই একেবারেই দুই পক্ষ, বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস, দুই পক্ষের তরফ থেকেই দেখা যায় যে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন তারা। এবং যে একটা মব, হঠাৎই একটা দিক থেকে বেশ কয়েকজন একটা মব সামনে ছুটে আসে এবং সেখান থেকে যে আদলা ইট সরার যে সেই ছবি স্পষ্ট ধরা পড়ে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে নেতাজিনগর থানার পুলিশ রয়েছে। এই যে পরিস্থিতি, এই যে আন্দোলনী মব এখানে সৃষ্টি হয়েছে, সেইগুলো তাদেরকে কিন্তু সরানোর জন্য পুলিশ ইতিমধ্যে চেষ্টা চালাচ্ছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কার্যত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। হঠাৎ করে এই উত্তেজনার শুরুটা কোথা থেকে হলো, রৌনক? তাতে একেবারে যে দেওয়াল লেখনকে কেন্দ্র করে আর সকাল থেকেই 98 নম্বর ওয়ার্ডে একটা উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তারপরে বিজেপির তরফ থেকে থানা ঘেরাও কর্মসূচি নেওয়া হয় এবং থানার সামনে আসতেই বিজেপি এবং তৃণমূল দুই পক্ষই বচসায় জড়িয়ে পড়ে। বচসা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে হাতাহাতি পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং তারপরে প্রায় দীর্ঘ 1 ঘন্টা ধরে নেতাজিনগর থানার সামনে দুই পক্ষই স্লোগান, পাল্টা স্লোগানিং করছিল এবং পুলিশের তরফ থেকে ব্যারিকেড করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ জমায়েত হওয়ার ফলে পুলিশের তরফ থেকে তাদেরকে সরে যেতে অনুরোধ করা হয় এবং যখন এই জমায়েত দুটিকে পুলিশ ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে, তখনই দেখা যায় যে দুই পক্ষ হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। বেশ কয়েকজন ইতিমধ্যে আহত হয়েছে এবং শুধু তাই নয়, হঠাৎই একটা বড় জমায়েত থানার পাশের একটি গলি থেকে ছুটে আসে এবং সেখান থেকেই আদলা ইট ছোড়া হয় এবং কাজে পুলিশকে লক্ষ্য করেও কিন্তু ইট এবং হেলমেট ছোড়া হয়। এখনো পুলিশের তরফ থেকে এই যে জমায়েত, সেই জমায়েত ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ ধরে এখানে এই একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, যাতে কোনো রকম ভাবে নতুন করে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেই কারণেই কিন্তু পুলিশের তরফ থেকে জমায়েত ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ওকে, ঝামেলা হচ্ছে